Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classroom. Today we are going to learn about 14th chapter of your class. As we have already learned a lots of thing about addition, subtraction, multiplication and division. So now we are going to learn something different which is related to patterns. So first if we talk about the patterns, we are already aware about the patterns. There are several patterns we can see in our daily life. If you see in your windows, if you see in various cloths, okay, in bed sheets, so there are lots of places we can see several kinds of patterns, okay. So in this chapter also we are going to learn about that those all things only. So what a pattern is, pattern means the same thing, same design when it is repeated after some interval of time, that is called pattern. So in this chapter we are going to talk about some geometrical pattern, and then we will talk about some number pattern also. Okay, so first about the pattern in geometrical shapes. So there are several geometrical shapes we are aware about. So we will see what kind of patterns can we make with the help of geometrical shapes. Okay, so if you stand in front of mirror, then you can see the same types of image will form in the inside the mirror. Okay, so what we will notice is we will see our own image in the at the mirror. So you and your image at the mirror are same. So this is why as much as distance you will stand, that much of distance the mirror image will also form, that much of size image will form. So same thing, everything when it is same size and shape, so that is we can say that mirror half. This is also called as mirror half. Okay, so your image which is formed in the mirror, that is the mirror half of your image. Okay, your uh, of yourself. So here it is the mirror half of your image whenever you stand in front of a mirror. Okay, so now you can see, you can observe the dotted line is used. So here as like यहाँ पे एक dotted line use किया गया है. So this is the mirror half of दिस पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर. यहाँ पे एक मिरर हब, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगाया गया है. सो दिस इज द मिरर हब, दिस इज ऑल्सो द मिरर हब ऑफ द जियोमेट्रिकल शेप. तो इसका इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है. दिस इज वी कैन ड्रॉ द मिरर हब ऑफ द object. Okay, now this square, these two are the rectangles. This is also rectangle, this is also rectangle. Now if we talk about this square, so this square we can make the mirror half like this, either from this corner also or from this corner also. Okay, so both are the corner, we can draw the mirror half of this two images. Okay, now if we are talking about the same thing here it is showing. This is the this is of the mirror hub of this is, and this is, and this is. These are the four mirror hub source. So either a rectangle you can divide it into two part by drawing a line here like this or like this. And if we are talking about a square also you can divide like this also, like this also, like this also, and like this also. So however you want you can divide into two parts. So this is called mirror half. When you divide a particular whole into two parts of equally distribute into two parts, that is called the mirror half of the particular image. Okay, so here some mirror half are given. So let's see now another. हेयर ऑल्सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसको मिरर हब बनाने के लिए, ठीक है, इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो सर्कल का मिरर हब निकालने के लिए. ठीक है, तो इस तरह से अगर ये हो गया ट्राइंगल का, ये हो गया सर्कल का, ये हो गया सेमी सर्कल. जब आधा होता है सर्कल का उसको सेमी सर्कल बोला जाता है. तो सेमी सर्कल का आप इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है. और जो ये दो पार्ट होता है, इस पार्ट को मिरर हब बोला जाता है इसका, या तो इस पार्ट को इसका मिरर हब बोला जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके इसको दो पार्ट में इसका मिरर हब निकाल सकते हो, मिरर हब बना सकते हो. ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी ड्राइंग्स यहाँ पे दिखाया गया है जो कि मिरर हब है. जैसे एप्पल को अगर इस तरह से करोगे तो इसका जो मिडिल से जो एक लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल बी द मिरर हब ऑफ द
एप्पल्स ऑल्सो। टेबल को करोगे तो सो अगर इस तरह से बीच से अगर टेबल को ये करते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो, दिस विल बी डिवाइडेड है। क्लॉक का हो सकता है, देन स्टिक का हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिरर हब और द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, now let's see about the next chapter, next topic what we have. Next topic, not we have exercise 14.1. So if we are talking about 14.1, first question it is asking some picture are given below. So here some picture are given, so using the dotted line you have to divide those picture which into two similar halves. So as like in the examples we have seen, we will divide these all image also into two halves, and we will draw a line of symmetry, or we will divide into two parts of the all the image. Okay, so let's divide all the image into two parts starting from this. So if you want to divide this triangle into two part, you can draw a line of dotted line here like दिस। इस तरह से इसको स्ट्रेट आप लोग डॉट डॉट करके इस तरह से जो है इसको स्ट्रेट खींचोगे। ठीक है, अभी इसमें सही से आ नहीं रहा है, तो इसको इस तरह से आप लोग डॉटेड लाइन पे इस लाइन स्ट्रेट खींचोगे तो ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ए का कैसे होगा, आप अगर इस तरह से करते हो तो ये गलत हो जाएगा ए का। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ से करते हो, बिकॉज दिस इज द नॉट मिरर हाफ। सो मिरर हाफ मतलब होता है इसको आधा इस तरह से करना ताकि वो दोनों जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ए को हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, एम को कैसे कर सकते हैं, एम को भी अगर ऐसे कर देते हो तो दिस विल बी रॉन्ग, बट एम को अगर इस तरह से करते हो सो दिस विल बी करेक्ट। ओके, देन इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आइदर इस तरह से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, और इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, और इधर से भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से स्क्वायर को जो है लाइन ऑफ सिमेट्री में बांटना बहुत इजी है। ठीक है, तो कैसे भी आपको करना है बना लेना। तो इसी तरह से मैं बना देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इन मिडिल में। ठीक है, अब क्यू का लाइन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, अब चेक कर लो एक बार। यहाँ पे क्या पूछा है, सम पिक्चर आर गिवन बिलो, सो यूजिंग डॉटेड लाइन डिवाइड दोज पिक्चर। वही पिक्चर को डिवाइड करना है जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, विच फॉर्म इनटू टू सिमिलर हाफ्स। सो यहाँ पे क्यू जो है हो सकता है क्यू का नहीं भी हो, तो इसका नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसका तो हो रहा था तो इसको करना है। यहाँ पे अगर इसको देखोगे, इसको अगर इस तरह से बीच से करोगे सो इट विल नॉट बी ए मिरर हाफ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर हम लोग का हैंडल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी ए मिरर हाफ ऑफ द इमेज। इसका भी मिरर हाफ नहीं बनेगा, इसको भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री से दो पार्ट में अलग नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब अगर चॉकलेट का बात करें, चॉकलेट का भी रैपर जो है, रैपर अगर सेम है तो ही इसका यहाँ से डिवाइड लाइन ऑफ सिमेट्री का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर रैपर सेम होगा तो यहाँ पे अगर एकदम बारीकी से देखा जाए तो रैपर दोनों सेम साइज का नहीं है, इधर का अलग है इधर का अलग है। बट अगर हम लोग सेम कंसिडर करते हैं देन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट एज लाइक मिरर हाफ। ओके, पेन का तो होगा ही नहीं, बॉल का हो सकता है क्या, यस। इस तरह से आप देखो करो, इस तरह से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ये हो सकता है क्या, यस। अब टी का देखो, टी का भी हो जाएगा क्योंकि इस तरह से यहाँ पे अच्छे से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पोटैटो का जो है ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसका बन जाएगा, सर्कल का इधर से भी बन जाएगा इधर से भी बन जाएगा, तो जो भी बनाना है कोई एक ड्रॉ कर लेना। सो चलो मैं इधर ही से करता हूँ। ठीक है, मैंगो का तो नहीं बनेगा, की का भी नहीं बनेगा, बी का बन जाएगा, बी का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट। तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, इसका बहुत ही इजी है, जिसका सिर्फ बनेगा उसी का करना है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 से 4 पिक्चर 5 पिक्चर बच गया जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना। एक तो क्यू का नहीं बना, दूसरा ये जग जो मग ये है कप है इसका नहीं बना, तीसरा पेन का नहीं बना, चौथा ये जो पोटैटो शेप का एक शेप है इसका नहीं बना, उसके बाद ये मैंगो का नहीं बना, और ये जो की है
ये भी इसका भी नहीं बना। तो इस तरह से हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री सारा चीज़ का नहीं भी बन सकता है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, जिसका मिरर हब नहीं बनेगा, तो उसका नहीं बनाना है, उसको हम लोग को अभी छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 14.1 एक्सरसाइज 14.1। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 14.1 वेरी वेल. So now we will move to the next exercise, right? Okay, so next exercise topics we will see next. Making pattern from geometrical shapes. So different geometrical shapes will be given. So using those all shapes, you have to make some pattern. You have to just check which pattern is followed, and according to that you have to make the next pattern. Okay, so here you can see we have in first pattern only a straight line, right? And in the second pattern we have one straight line going upward. In third stage so we have again one straight line is going to the reverse order. Okay, and then again downward and then again reverseward. So इस तरह से एक पैटर्न बन जा रहा है। पहले तो एक इस तरह से जाता है, ये इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से बढ़ता है, फिर इस तरह से बढ़ता है, फिर इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से बढ़ता है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न बनते जाएगा। इधर अगर बनाओगे फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, नीचे आएगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से एक पैटर्न बनते जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न को आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज द अबाउट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैटर्न इज गिवन। सो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन है जो कि ऊपर तरफ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से है जो कि राइट साइड में जाता है आगे की तरफ। उसके बाद अगेन वर्टिकल लाइन जो कि डाउनवर्ड आता है, और एक अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है राइट एंड साउथ साइड में जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये एक पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न को हम लोग आगे बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 14.2 में जो हम लोग का है, पहले एक जो है स्ट्रेट लाइन है, फिर एक स्ट्रेट लाइन के बाद एक जो है एक लाइन अगेन डाउनवर्ड जाता है, फिर अगेन एक स्ट्रेट लाइन जाता है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, फिर अगेन डाउनवर्ड जाता है। तो इस तरह से अगर नेक्स्ट पैटर्न का हम लोग बात करें तो कैसा बन जाएगा, ये जो नेक्स्ट पैटर्न है वहाँ तक तो है ही, ये हो गया नेक्स्ट पैटर्न तक। अब और एक यहाँ पे फॉरवर्ड तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न से एक और नेक्स्ट स्टेप बनना चाहिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो बनेगा वहाँ पे ये तो बनेगा ही, अब अगेन इधर फिर आएगा और एक स्टेप। ठीक है, और फाइनल स्टेप में क्या होगा, इस तरह से है, 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 और अगेन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके लाइन इसमें बढ़ाते जाना है। ठीक है, एक एक करके लाइन बढ़ाते जाना है, तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पैटर्न को देखना है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को आगे जो है ड्रॉ करना है पैटर्न। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट 1 लाइन इज देयर, देन 2 लाइन, देन 3 लाइन, देन 4 लाइन, देन इट विल बी 5 लाइन। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से तो बनेगा ही, और एक लाइन बढ़ जाएगा, 5 लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में और एक लाइन बढ़ जाएगा, 1 यहाँ से था। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो यहाँ पे है ही, और एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला में यहाँ पे तो 6 वाला हो जाएगा, और नेक्स्ट में जब जाएगा यहाँ पे और एक बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पैटर्न यू हैव टू चेक विच पैटर्न इट इज फॉलोइंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू द ड्रॉ द फर्दर पैटर्न। ओके, वेरी इजीली, वेरी सिंपली. Now we will discuss question number third. Question number third is also the same. Okay, suppose one line is there. Okay, and in next it is one arrow is showing like this. In next another arrow is showing like this, and in next again it is drawing like this. So what will be the next? Next क्या होगा, यहाँ पे एक arrow बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ड्रॉ करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से तो ये arrow है ही, इस तरह से arrow है ही, और एक arrow बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जब यहाँ का बात करेंगे तो और एक लाइन यहाँ पे बन जाएगा, और भी अगर फर्दर दिया हुआ रहे तो यहाँ पे बनेगा, और फर्दर यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से जो एक एक स्टेप्स है
इस तरह से नेक्स्ट स्टेप्स होते हुए जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14 A and 14 exercise 14.1 and 14.2. Okay, now let's see the next question which we have is next topic which we have is number pattern. Okay, so now till now what we have discussed are the pattern related to geometrical shapes. Now we will discuss about the pattern related to numbers. How can we write patterns of numbers? Okay, so in your previous class also you have learned some patterns. Okay, and we have already also learned about even and odd numbers. सो हेयर वी विल सी सम मोर नंबर पैटर्न्स, यहाँ पे कुछ और भी नंबर पैटर्न्स जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपने जो इससे पहले क्लासेस में देखा है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, राइट। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। ऑड नंबर क्या हो जाता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं जाता है, जैसे लाइक 3, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ पे अभी जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल जो दिया गया है, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 है। मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल है। ओके, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30। ओके, सो इस तरह से हम लोग का 6 11 और 66 तक का ये टेबल दिया हुआ है, 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग क्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पैटर्न बना हुआ है नंबर का, ठीक है। ये कंटिन्यूसली पैटर्न है। यहाँ पे अगर बीच में कोई एक नंबर नहीं रहता या कुछ गैप रहता तो वो पैटर्न टूट जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे 6 का एवरी टाइम 6 6 6 6 जो है ऐड होते गया है, ठीक है। तो ये एक नंबर पैटर्न है। इसी तरह से यहाँ पे अगर फिर हम लोग इसको और भी बात करें, ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न भी सेम है, 6 का ही टेबल का पैटर्न है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे घटते गया है 6 6। यहाँ पे हम लोग का पैटर्न में 6 6 बढ़ते जा रहा था। 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, 24 + 6 = 30। बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हुआ है, 66 से 6 घटा है 60 हो गया है, 60 से अगेन 6 घटा है 54 हो गया है, 54 से अगेन 6 घटा है 48 हो गया है। तो इस तरह से रिड्यूस होते गया है, घटते गया है, और फाइनली ये 12 हुआ है। 12 के बाद अगर 6 फिर घटा देते तो 6 हो जाता। तो ये जो दोनों हैं, दोनों एक पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है एक नंबर पैटर्न को फॉलो करते हुए काम किया है। तो उसी तरह से 9 का अगर बात करें तो यहाँ पे चेक कर लो, 9 का भी सेम चीज़। एक तो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे 9 9 9 एवरी टाइम, और अगर उसका ऑपोजिट बात करें तो यहाँ पे 9 9 घटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हो गया हमारे नंबर पैटर्न्स का, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो 14.3 का क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 72 है। सो 72 माइनस हाउ मच इज इक्वल टू 78, यू हैव टू चेक इन योर माइंड। और if you need paper pen, you can calculate by subtracting, but it will be better if you do using your mind, okay, because we know 72 minus how much is equal to 78. So 72 plus you have to check how much 72 के साथ कितना और जोड़ा जाए कि 78 होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेफिनेटली 6 + 2 = 8, दैट मीन्स 6 ऐड करना है। तो 72 + 6 = 78। अब अगेन 78 के साथ 6 ऐड करते हो तो 84 होता है। तो इसी तरह से ये पैटर्न हमको ये पता चलता है कि एवरी टाइम इस नंबर के साथ 6 6 ऐड करना है। तो 84 के साथ अगर 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 84 + 6 = 90, राइट। तो नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग का हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसी तरह से 90 के साथ फिर 6 ऐड करोगे 96 हो जाएगा। फिर 96 के साथ 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 102, राइट। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर और भी नेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आपका बन जाएगा पैटर्न उसके हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का जो है वो है 120 देन 114। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से 14 हो गया, मतलब घट रहा है।
अब आपको देखना है कितना घट रहा है, तो कितना घटना है वो देखने के लिए आइदर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो माइंड में चेक कर सकते हो कि 20 माइनस हाउ मच इज इक्वल टू 14। सो अगेन 20 माइनस हाउ मच इज इक्वल टू 14, ये हम लोग को देखने के लिए 14 के साथ कितना जोड़े तो 20 आएगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 114 के साथ कितना और जोड़े कि 120 आएगा ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 अगर ऐड करते हैं 114 में तो 120 होता है। तो इसका मतलब इसमें भी 6 रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि घट रहा है बार बार। ठीक है, तो अगर रिड्यूस 120 से 6 घटाया हमने तो 114 हुआ। फिर हम लोग ने 114 से अगर 6 घटाए तो 108 हुआ। तो 108 से फिर अगर वो हम लोग 6 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 102। अब 102 से अगेन 6 हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 900 है, सॉरी 90। 90 हाउ मच? चेक। If you subtract 6 from 102, 2 subtracted and again 4 will be subtracted. So 4 means 96. So here it will be 96. And then 96 minus 6 is 90. Then 84. So likewise it will goes on. है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को भी। उस तरह से सी का हम लोग चेक करेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सी में। सो सी में हम लोग का है 726, देन 720, देन 714। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 का ही रिडक्शन हो रहा है, 6 घट रहा है, तो यहाँ पे भी 6 घटाते हुए जाना है। ठीक है, उसी तरह से डी का भी करना है, ई का भी करना है। तो 6 से या जो भी पैटर्न ये फॉलो करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि 6 का ही पैटर्न फॉलो करेगा। आपको देखना है कि ये पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, दोनों आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा, वो भी चेक करना है आपको। कौन सा ये जो दोनों नंबर दिया हुआ है वो क्या फॉलो किया है, उसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो, तो माइंड में कैलकुलेट करते हो तो और बेटर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपको लिखना है। सो फर्दर वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर टुडे दैट मच ओनली, दिस मच ओनली। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।